Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to be discussing the global nuclear regime and with a specific focus on South Asia. Since throughout the lectures, what I've tried to do is कि पाकिस्तान का end में एक perspective हम देते हैं, लेकिन क्योंकि at least इस particular topic के हवाले से South Asia का जो region, it is considered the most volatile in nature in terms of a nuclear arms race, जो कि specifically speaking कही जाती है कि जी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में पीक पर है इस वक्त दुनिया में किसी और रीजन के कंपैरेटिवली। उसी तरह वाइल रिलेशनशिप बिटवीन चाइना एंड इंडिया आर आल्सो नॉट वेरी कंड्यूसिव, कोई अच्छे हालात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी आर्म्स रेस को कोई इतना सिवियर नहीं कंसिडर किया जाता एज कंपेयर टू पाकिस्तान एंड इंडिया। Okay, so let us start with this very important quote by Hedley Bull. He said that it is commonly assumed that the only important questions that arise in connection with disarmament, which means के हथियार डाल देना या disarmament of nuclear weapons यानी उनको खत्म कर देना, और arms control concern how it may be brought about, but the question must first be asked, what is it for? यानी कि ये तो सब काफी जो आपके जो peace groups हैं, many of the liberals and general thinking है across the globe after the 90s and specifically during the 90s, वो एक liberal approach थी. It was a peaceful era, time था, growth and economy का, तो उस वक्त ये concept रखा गया था और तभी ये जो treaties है वो comprehensive test ban treaty थी and all of those things, इनकी signatories की तरफ बढ़ना and ये सारी चीजें जो हैं उस वक्त अमल में आती, because it was considered like the highest peak of liberal इकोनॉमिक्स कि जी दुनिया में ट्रेड हो रहा है, बॉर्डर्स डिसॉल्व हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी का शेयर है. सो इट वाज सॉर्ट ऑफ लाइक अ यूफोरिक मोमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, और उस वक्त ये समझा जाता था कि जी न्यूक्लियर वेपन्स की अब जरूरत एज सच नहीं रही. So early 90s के अंदर there was little that could have been done about the regional conflict that was happening in Pakistan and India. हमें ये पता है कि इंडिया के ऊपर भी sanctions लगी और फिर बाद में पाकिस्तान के ऊपर भी sanctions लगी, लेकिन जिस दिन पहला न्यूक्लियर धमाका किया था इंडिया ने, उसी दिन it was pretty much obvious कि that Pakistan had little to no choice but to go nuclear as well. इसको ताकि रीजन की स्टेबिलिटी रहे. अच्छा, अब इससे क्या मतलब है ये हम आगे भी देखेंगे. Unless there can be some clear conception of what is that disarmament or arms control is intended to promote, and to what extent and what ways it is able to do so, no disciplined discussion of the subject can begin. यानी कि obviously having more dangerous weapons around the globe, जहाँ पे ज़्यादा चांस बढ़ता जा रहा है एक न्यूक्लियर वॉर का या existential threat होगा, क्योंकि अगर एक जो न्यूक्लियर अपना क्या कहते हैं बॉम्ब गिराया जाता है तो उसकी जो repercussions हैं that last for many years, not just that moment. I would recommend कि आप लोग हिरोशिमा एंड नागासाकी जो के 1945 में बॉम्ब गिराया था यूएस ने जापान के ऊपर, इन दो शहरों को तबाह कर दिया था, उसकी इम्पैक्ट्स को देखें. जरा देखिएगा कि किस तरह से जेनेटिक म्यूटेशंस और इलनेसेस का एक थरो स्प्रेड रहा है throughout the many generations in those two cities, specifically even the survivors that did, and it was a horrific scene. इसके हवाले से एक आर्टिकल है, वो मैंने आप लोगों की रीडिंग लिस्ट में डाल दिया हुआ है, इंशाल्लाह वो आप पढ़ेंगे तो you will get a better idea कि exactly क्या connotations है और क्या मतलब है कि अगर कोई इतनी खौफनाक किस्म की अगर वेपन का इस्तेमाल एक्चुअली होता है तो what does it actually result in. और वो था भी बिल्कुल बेसिक बॉम्ब, the one that was dropped on Hiroshima and Nagasaki. Weapons have been enhanced on a whole another level now. Hydrogen bomb जो है अब आपका वो कहा जाता है कि could be equivalent to 1,000 Hiroshima and Nagasaki's. Okay, so moving forward, right now 2020 में जो estimated global nuclear warhead inventories थी वो क्या थी? Israel, although has officially never said that they have a program that supports nuclear weapon programs नहीं है, लेकिन obviously the whole world knows that Israel has a nuclear program. United States के पास इस वक्त रशिया के पास जो है इस वक्त सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं 6,375, एंड यूके के पास मौजूद है, फ्रांस के पास मौजूद है. अच्छा, कनाडा इज अ यूनिक केस ऑफ sort of an exception to this because they do have nuclear capable technology. In fact, जो reactors इंडिया ने इस्तेमाल किए और जिनकी बेस के ऊपर उन्होंने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम इनिशिएट किया, वो रिएक्टर्स उन्होंने कनाडा से खरीदे थे, जो कि जब इंडिया एक्चुअली वेंट मिलिटरीली न्यूक्लियर
तो सबसे ज्यादा एतराज और शोर जो है कनाडा ने किया था। और वो जो मशीन्स थी एंड जो रिएक्टर्स थे, इट वाज उस जमाने में ये कंजेक्चर था, ऑल्दो कनाडा नेवर रियली ओपनली एडमिटेड टू दिस, और उसके हवाले से थोड़ा सा वो मौजूद है, लेकिन अब इट इज अ नोन सीक्रेट कि कनाडा ने प्रोवाइड किए थे सारी चीजें, एंड बिकॉज दे वांटेड टू प्रोवाइड इंडिया विद एन ऑप्शंस फॉर न्यूक्लियर एनर्जी। और न्यूक्लियर एनर्जी के हवाले से एक्सप्लॉइट किया गया है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को इंडिया के अंदर। हाउएवर वो उनकी मिलिट्री कैपेसिटी के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है, जिस तरह के पाकिस्तान में। जो फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट एक्सप्लोजन थी 1945 में हुई, उसके इमीडिएटली आफ्टरमैथ में 2 एटॉमिक बॉम्ब्स वर ड्रॉप्ड इन हिरोशिमा एंड नागासाकी। जापान 45 इट आल्सो ऑफिशियली, मतलब वॉर ऑफिशियली खत्म हो चुका हुआ था, द एलाइज हैड वन। हाउएवर दिस would remain as one of the lasting examples of add more injury to the already existing injury, because क्योंकि Japan had dared attack America in the form of Pearl Harbor, तो ये एक तरह का revenge था। Even though the Allies had already won, there was no need for this particular bombing. But this would serve as a reminder to every other state forever that the US has the capacity to destroy its enemies completely, those at least the ones that dare to attack them. फिर obviously in pursuit of कि उनकी ideological differences से, this is also a beginning period of the Cold War कि जी Soviet communism states and capitalist states के दरमियान में एक जो global warfare start हुआ था right after the World War II, तो वो जब हम देखते हैं तो फिर many of the states became nuclear, जिसमें North Korea eventually later on, much later on, they also became nuclear. और सबसे पहला तो जी the UK became in 1952, France in 1960 and China in 1964, and they were obviously closely followed by 70s के अंदर by an explosion was conducted by India and then followed by Pakistan. And North Korea has also pursued its various ventures, और वो भी NPT का हिस्सा नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स ने जब देखा कि जी कंट्रीज जो हैं वो more and more countries are becoming nuclear and it is becoming a problem, because जितने ज्यादा nations होते जाएंगे nuclear, उतना ज्यादा control mechanism dangerous हो जाएगा। एक country के assets गलत हाथ में fall कर जाएं तो it would be disastrous for the entire human race. So despite the fact that many people say कि जी एनपीटी कोई सक्सेसफुल नहीं रही, कोई खास कंट्रोल नहीं हुआ, वेपन्स और आर्म्स रेस जो है यूएस और रशिया के दरमियान में भी चलती रही थ्रू आउट द कोल्ड वॉर, एंड यूके और फ्रांस भी अपनी टेक्नोलॉजी और वेपनरी को एनहांस करते रहे हैं, और टेस्ट बैन के बावजूद जो है 90s एंड 2000s के अंदर जो है यूएस अपनी मुख्तलिफ टेस्ट न्यूक्लियर वेपन्स के कंडक्ट करता ही रहा है। So this is true for like all these states. Achha, India, Israel, and Pakistan never signed NPT, and all these 3 states possess nuclear weapons, and उन्होंने कभी भी NPT को sign नहीं किया था. So China signatory है NPT का, which is the non-proliferation treaty. That means कि आपके weapons और spread ना करें. So despite the fact कि North Korea ने भी pull out कर लिया था treaty में से in 2003, और sanctions के डर से इराक जो है और ईरान जो है अभी तक फुली न्यूक्लियर नहीं हुए। लीबिया, सीरिया, ईरान, these are the countries that have secretly pursued becoming nuclear to protect themselves. इसके पीछे 3-4 थ्योरीज हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। होता क्या है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको कंट्रोल करना, टैकल करना इन ट्रीटीज के अंडर मुश्किल रहा है, लेकिन इसमें एक तरह से सक्सेस भी है। एज यू कैन सी फ्रॉम दिस ग्राफ कि 86 में पीक कर गए थे न्यूक्लियर वेपन्स और वॉरहेड्स, उसके बाद इनके नंबर्स में ग्लोबली ड्रॉप आया है क्योंकि बाकी कंट्रीज को कंट्रोल कर लिया गया वक्त से पहले। सो अब कोई कंट्री अगर रिस्क लेता है न्यूक्लियर होने का तो उसको बहुत ज्यादा थ्रेट फेस करना पड़ता है उन कंट्रीज से जिनके पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, या जो फिर उनके ऊपर सैंक्शंस लगा सकते हैं, जिसमें लीडिंग एग्जांपल आपके पास यूएस और चाइना की है। Okay, so what is the purpose? Why opt for a weapon that you can never use? अब इसमें सबसे important चीज क्या है? As you can see in this particular comic, कि deterrence और क्या कहते हैं mutually assured destruction. I forgot to mention here कि MAD is an acronym which means mutually assured destruction. That means कि जो countries जिनके पास nuclear weapons हैं उनको अगर ये confirm है
कि जी हम अपना वेपन फायर करके दूसरे को इररिपेरेबल डैमेज दे सकते हैं, जहां से रिकवरी इम्पॉसिबल होगी, तो वो हम पे हमला ही नहीं करेगा। दैट मीन्स कि अगर कोई हम पे हमला करता है, विच इज जो कि इंडिया पाकिस्तान के केस में हैज बिन अ थिंग, कि जी वो आप पे, अगर हम पे इंडिया हमला करता है, इंडिया हम पे हमला करेगा, हम उन पे कर देंगे, एंड मतलब म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, दोनों तबाह हो जाएंगे। और न्यूक्लियर वेपन्स का स्केल और लेवल ऑफ डैमेज ही इस तरह का है कि वो इतना इररिपेरेबल ह्यूमन लॉस है दैट इट वुड मेक नो डिफरेंस एट हु हैड अ बिगर आर्मी या किसका एरिया ज्यादा था। Okay, so now coming to the reason for having nuclear weapons in the first place, I think this comic is quite self-explanatory कि क्यों ईरान परसू कर रहा है न्यूक्लियर डेटरेंट। देखिए ना, अब आपको ये पता है कि वो तमाम ममालिक अगर जिनके ऊपर इन्वेजन हुई है, अफगानिस्तान बीइंग एन एग्जांपल, ये एक और बात है कि उस डिबेट में हम जाएं कि एक कितनी डिफिकल्ट किस्म की एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट जो कि जिसको रिकग्नाइज नहीं करती दुनिया, जैसे तालिबान की थी फ्रॉम 94 टू 2001, तो कैसे उनके हाथ में अगर होते न्यूक्लियर वेपन्स तो क्या अमेरिका उन पे कभी हमला करता? सवाल ही पैदा नहीं होता। they wouldn't even think or dare about attacking any particular country that has a nuclear weapon। उनको इकोनॉमिक सैंक्शंस लग सकती थी, उनको ट्रेड के जरिए खींचा जा सकता था, एंड मुख्तलिफ वजूहात। तो जब किसी किस्म का नुकसान गारंटीड होगा उस पार्टी को जो अटैक कर रही है, इन दिस केस अमेरिका, तो वो कभी भी उन कंट्रीज पे हमला नहीं करेगा। आई थिंक दिस कार्टून डिस्क्राइब्स द कोर ऑफ द इशू कि जिन कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, जैसे पाकिस्तान है, डू यू थिंक दैट वी वुड हैव बीन सेफ अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस अगर हमारे पास वेपन्स ना होते? बहुत सालों पहले शायद अमेरिका ने इस प्रीटेक्स्ट पे कि जी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होती हैं एंड दे आर सपोर्टिंग द तालिबान, तो हम इन पे हमला कर देते हैं। हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था, लेकिन आपके न्यूक्लियर आर्सेनल ने आपको बहुत ज्यादा बचा के रखा हुआ, पाकिस्तान बीइंग द ओनली न्यूक्लियर इस्लामिक स्टेट इन द वर्ल्ड राइट नाउ। दो ही चीजें आपको इस रियलिस्टिक वर्ल्ड में, जहाँ पे एवरी स्टेट इज ओनली इंटरेस्टेड इन इट्स ओन बेनिफिट, एक प्रोटेक्ट कर सकती है, या तो वो न्यूक्लियर डेटरेंस है या वो पैसा है। इन द केस ऑफ सऊदी अरब एंड मेनी अदर स्टेट्स, उनके पास बेशुमार पैसा और रिसोर्सेज है, ये हमें पता है। अच्छा, तो बेसिकली डेटरेंस ये कहती है कि न्यूक्लियर वेपन्स कैन इंड्यूस स्टेबिलिटी एंड डिक्रीज द चांसेस ऑफ क्राइसिस एस्केलेशन। यानी कि पुराने जमाने में जो और इतने सारे वॉर्स हुए, आपके वर्ल्ड वॉर 1 और 2, तो वहां पे इतना आपस में लिंक था इस बात का कि बिकॉज वहां पे डेटरेंट नहीं था। वो कहते हैं कि अगर न्यूक्लियर वेपन्स ना होते उस जमाने में, या अगर होते सॉरी, तो शायद वर्ल्ड वॉर 1 और 2 भी ना होते। there is some benefit that can be drawn from this argument, because वाकई ये हो सकता है, क्योंकि अगर डेटरेंस मौजूद होती कि जी इतना कोई सिवियर या खतरनाक स्टेप उठा सकती है कोई स्टेट, तो शायद वाकई फ्रॉम द फियर ऑफ रिटेलिएशन आपका वॉर एक्चुअली ब्रेकआउट होता ही ना। तो अगर कोई मामूली लड़ाई स्टार्ट होती है, तो फियर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन या न्यूक्लियर यूजेज के बेस के ऊपर वो कॉन्फ्लिक्ट वहीं पे रुक जाता है। फिर जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान का जो सारा पायलट्स वाली जो लड़ाई हुई, या अभी रिसेंटली पाकिस्तान के सॉरी चाइना और इंडिया के दरमियान में कीलों लगी लकड़ियों के साथ लड़ रहे थे उनके फौजी, लिटरली बिकॉज नोबडी वांटेड टू टेक अप आर्म्स, बिकॉज एस्केलेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ना हो, यानी कि लड़ाई वर्स ना होती जाए टाइम के साथ। सो बेसिकली इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो है इस चीज की कि क्राइसिस एस्केलेशन को रोका कैसे गया, तो उसमें क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो कि 60s के अंदर हुई थी बिटवीन यूएस एंड रशिया, वो इसकी सबसे बड़ी इसकी एग्जांपल दी जाती है कि क्योंकि दोनों कंट्रीज न्यूक्लियर थे, दोनों के पास मिसाइल्स थी और दोनों के पास सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी थी। दैट मीन्स कि अगर
कोई स्टेट पहले हमला कर देती तो सिर्फ बदला लेने के लिए पहली स्टेट जो है वो जवाबी कार्रवाई कर सकती थी विद न्यूक्लियर वेपन्स, व्हिच इज व्हाई the Cuban Missile Crisis got resolved, although it came very, very dangerously close to an all-out war. लेकिन ultimately कुछ हुआ नहीं. And उस जमाने में ये कहा गया कि the nuclear bomb is much better at instilling peace and stability in the world than UN ever could be, because it acted as an amazing deterrent between two, मतलब एक तो फिर इसी वजह से वहां से इस जमाने से फिर प्रॉक्सी वॉर्स की गेम स्टार्ट हुई कि जो दो हरीफ आपस में डायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व नहीं हो सकते थे वो दूसरी पावर जो दूसरे ममालिक के थ्रू वॉर्स वहां पे शिफ्ट हो गए. सो देन बिगेन द एज ऑफ प्रॉक्सी वॉर्स कि जोन से भी दो रिवायती हरीफ थे वो आमने सामने तो नहीं हो सकते. तो कोवर्ट ऑपरेशंस, गुरिल्ला वॉरफेयर्स, प्रॉक्सी वॉर्स एंड सपोर्टिंग ओवर्टली और कोवर्टली डिफरेंट ग्रुप्स. फिर इसमें टेररिस्ट फंडिंग भी आ जाती है. फिर वही वाली बात कि वन मैन टेररिस्ट कुड बी अनदर मैन फ्रीडम फाइटर. तो फिर नाउ कॉन्फ्लिक्ट जो है अब मॉडर्न डे कॉन्फ्लिक्ट वो है लो इंटेंसिटी. दैट मीन्स कि ऑल आउट वॉर बहुत मुश्किल से ब्रेकआउट होगा, क्योंकि आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर ऑफिशियली, और जो आपके लास्ट नोन पॉसिबल एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है जैसे कि कोरियन वॉर है और जैसे कि वियतनाम की क्राइसिस थी और फिर अल्टीमेटली जो अब हाल हुआ है यूएस का अफगानिस्तान से, देयर इज नो विनिंग सच वॉर्स. गुरिल्ला वॉरफेयर या गुरिल्ला टैक्टिक्स को इम्प्लाई करने वाला कोई भी आपका एनिमी जो है उसको मुकम्मल हराना इज इम्पॉसिबल, क्योंकि वो आपसे कोई एक फेयर फाइट तो कर नहीं रहे और ना ही कोई फेयर एडवांटेज यहाँ पे मौजूद है. ऑब्वियसली बिकॉज अगर एक हरीफ के पास बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी है, वेपन्स हैं, एयरप्लेन्स हैं, ड्रोन्स हैं, एंड विद मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स बीइंग पुश्ड इनटू दिस पर्टिकुलर रीजन, तो क्या वजह है कि न्यूक्लियर होने के बावजूद भी वो अफगानिस्तान में हार गए? बिकॉज जो वॉरफेयर था वो टैक्टिकल था, गुरिल्ला अटैक्स थे, यानी कि थोड़े थोड़े देर बाद एक हमला करते थे सिविलियंस पे या टारगेट, सॉफ्ट टारगेट्स के ऊपर तालिबान. सो अब ऑल आउट वॉर तो हो नहीं सकता बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर कैपेबिलिटी. जैसे अब इंडिया पाकिस्तान के दरमियान में भी वॉर फुल फ्लेज अब नहीं हो सकता. यही होगा कि जी बॉर्डर पे फायरिंग हो जाएगी, फलां एयर स्ट्राइक कर दी, हमने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, फलां ये कर दिया. दिस इज द मैक्सिमम दैट इट कैन एक्चुअली गो टू बिटवीन टू न्यूक्लियर पावर्स. Even a country with nuclear powers will never use nuclear weapons now in the current climate, modern world, on another country which doesn't have nuclear weapons. वो वैसे हमला शायद कर दे, लेकिन क्योंकि रेडिएशन पॉइजनिंग से लेके क्लाइमेट डैमेज से लेके एंड उस रीजन के डैमेज में, क्योंकि अगर आप एक स्टेट के ऊपर बॉम्ब गिराते हैं, फॉर एग्जांपल ईरान के अंदर अगर गिरा भी देता है यूएस न्यूक्लियर वेपन, तो वो डैमेज करेगा पाकिस्तान को भी और हर नेबरिंग कंट्री, क्योंकि जो कैपेसिटी है अब न्यूक्लियर वेपन्स की वो आपकी जमीन को बर्बाद कर देगी, बंजर करने की कैपेसिटी है. रेडिएशन पॉइजनिंग विल रूइन द इंटायर कंट्री और उस जमीन को परमानेंटली डैमेज कर सकती है. अब जैसे आप, आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस टू गो थ्रू दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्री कॉल्ड शर्नोबिल. इट्स ऑन व्हाट यू कॉल इट, इट्स ऑन नेटफ्लिक्स. एंड अगर आप वो देखें तो आपको पता चलेगा कि एक दिन का, 2 दिन का या इवन 50 साल का नुकसान भी कम है, टाइम कम है टू रियली सी के रिकवरी फ्रॉम समथिंग लाइक रेडिएशन पॉइजनिंग या रिकवरी फ्रॉम न्यूक्लियर वेस्ट इश्यूज. शर्नोबिल का जो एक्सीडेंट था, जो कि रशियन एक फैसिलिटी थी, न्यूक्लियर फैसिलिटी, वो आपको बताती है कि ये वेपन इटसेल्फ डेंजरस कितना ज्यादा है, कि अंडर नो सर्कमस्टांसेस इट्स यूज कैन बी डिफेंडेड और इम्प्रूव्ड अपॉन. और उसी तरह ये बात की जाती है कि कुछ जो स्टेट्स जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो अपनी सेफ्टी की हद तक तो उनको रख सकते हैं कि उनका इस्तेमाल का थ्रेट जो है वो उनको पीस दे रहा है. दिस इज कॉल्ड अ न्यूक्लियर पीस थ्योरी, कि क्योंकि इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो हैंसफोर्थ इनकी लड़ाई नहीं हो सकती और पीस हो. ऑल्दो इसके ऊपर काफी एतराजात होते हैं और जो लिबरल्स हैं वो ये कहते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स जितने ज्यादा होंगे और मटेरियल जितना एक्सेसिबल होता जाएगा उतने ज्यादा चांसेस हैं कि टेररिस्ट और वायलेंट ग्रुप्स जो हैं वो इनको हत्या लें और इनका इनडिस्क्रिमिनेट यूजेज शुरू कर दें. अच्छा जी, अब जो म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन या न्यूक्लियर डेटरेंस है उसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट एज
आती है, एक बात आती है जिसको हम कहते हैं फर्स्ट यूज पॉलिसी एंड सेकंड यूज पॉलिसी। फर्स्ट यूज पॉलिसी एग्रेसिव है, जो कि पाकिस्तान की है। इट स्टेट्स के भाई हम डिफेंस करने का वेट नहीं करेंगे, हम पहले एक गो में अगर हम पे कन्वेंशनल अटैक भी होता है तो हम न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तान की ये पर्टिकुलर पॉलिसी न्यूक्लियर वेपन्स को लेके इसलिए भी है क्योंकि इंडिया पाकिस्तान से साइज में और कन्वेंशनल वॉरफेयर में नंबर्स में हमें काफी बुरी तरह आउट नंबर करते हैं। बिकॉज हम उनको वैसे कैचअप नहीं कर सकते, सिंपली बिकॉज हमारी पॉपुलेशन या रिसोर्सेज उनके कन्वेंशनल वॉर के अंदर सस्टेन नहीं हो सकेंगे। इसलिए पाकिस्तान की फर्स्ट यूज पॉलिसी है। इंडिया चाइना की है सेकंड यूज पॉलिसी। दैट मीन्स कि उनके पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, यानी कि उन पे कोई हमला करे तो वो पलट के जवाबी कार्रवाई में बदलतन उन पे हमला कर सकते हैं। लेकिन दोनों कंट्रीज ने ये कहा हुआ है कि हम सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करेंगे अगर कभी इस्तेमाल करेंगे। सो अब वही वाली बात यहाँ पे और ये हुई भी है कि जी म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन के प्रिवेंटिव नेचर ऑफ फुल स्केल न्यूक्लियर अटैक दैट वुड डेवास्टेट बोथ पार्टीज इन न्यूक्लियर वॉर। अब डेटरेंस के साथ जो प्रॉब्लम आती है कि आप वो कैसे आप क्रेडिबली थ्रेटन करें मिलिट्री एक्शन और न्यूक्लियर एक्शन डिस्पाइट इट्स कॉस्ट। फॉर एग्जांपल के अगर आपने वाकईतन किसी पे हमला कर लेना है तो आप उसको हमले को कंट्रोल कैसे करेंगे, उस न्यूक्लियर अटैक को कंट्रोल कैसे करेंगे, नोइंग फुल वेल कि सारी पार्टीज को पता है कि एक्चुअल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कितना डेविस्टेटिंग है और लाइफ, लैंड, प्लांटेशन, एनवायरमेंट का जो नुकसान है वो तो इररिपेरेबल। सो अब व्हाई डू स्टेट्स एक्चुअली गो न्यूक्लियर? उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जी स्टेट सर्वाइवल थ्योरी, सबसे इंपॉर्टेंट। जॉन मेयरशाइमर ने ये कहा था कि जी स्टेट्स जो हैं वो अपने सर्वाइवल के लिए फाइट कर रही हैं, दुनिया में एनार्की है और द वर्ल्ड इज इन अ स्टेट ऑफ एनार्की, देयर इज नथिंग कॉल्ड इंटरनेशनल लॉ और ऑर्डर, बट जो ताकतवर है उसकी सर्वाइवल गारंटीड है। सो यानी कि इसके अंदर ये बात की जा सकती है कि जो कोल्ड वॉर के शुरू दिनों में क्योंकि रशिया को पता था कि उनकी आइडियोलॉजी और उनकी इन्फ्लुएंस यूएस से बहुत डिफरेंट है और फ्रॉम फॉर फियर दैट यूएस वुड अटैक देम आल्सो, बिकॉज इन रिसेंट पास्ट उन्होंने जापान पे हमला किया था, तो दे आल्सो वेंट न्यूक्लियर। सो ये समझा जा सकता है कि एक तरह से न्यूक्लियर वेपन्स हैव प्रोटेक्टेड दीज स्टेट्स फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डायरेक्ट एग्रेशन फ्रॉम अदर स्टेट्स। फिर इसके अलावा क्या पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस हो सकती हैं? दूसरी जी नेशनल प्रेस्टीज थ्योरी एक है और फिर एक ग्रेट पावर थ्योरीज है। कि एक और रीजन ये है कि कई ऐसी कंट्रीज जहाँ पे डिक्टेटर्स हैं या अथॉरिटेरियन रिजीम्स हैं तो वो सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स इसलिए हासिल करना चाह सकते हैं ताकि उनकी पावर में इजाफा हो या नेशनल प्रेस्टीज में हो गए वो भाई वाह इस मुल्क के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ये पर्टिकुलर नेशनल प्रेस्टीज वाली जो लॉजिक है ये यूजली नॉर्थ कोरिया पे लगाई जाती है। मैंने बुक किताबों के रेफरेंसेस दे दिए मैं, दिस वाज सेड बाय ओनील इन हिज बुक इन 2006 कि नॉर्थ कोरिया की जो उन्होंने पुल आउट था फ्रॉम द एनपीटी एंड फॉलोड बाय किम योंग उन के जो सारा कौन था कि जी हम मिलिट्री और अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स डेवलप करेंगे ताकि हम दुनिया में कहीं पे भी फायर कर सके। सो दे दिस पर्टिकुलर थ्योरिस्ट ओनील सेड कि जी मतलब he is saying this because he wants to show to his military, his citizens and the world that North Korea can defend itself and that nobody can dare attack North Korea. So ये नेशनल प्रेस्टीज, ऑल्दो इसको कई लोग वंस अगेन डिनाई करते हैं कि नॉर्थ कोरिया ने भी सर्वाइवल टैक्टिक यूज किया क्योंकि वो एक कम्युनिस्ट स्टेट है और वहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस बहुत सिवियर हैं और डेमोक्रेसी नहीं है। तो वो उनको लगता है कि जी इन तीन चीजों की बेस के ऊपर उन पे हमला किया जा सकता है। और हमें पता है कि जी नॉर्थ कोरिया के ऊपर बहुत बुरी सैंक्शंस इकोनॉमिक और इट इज अ वेरी क्लोज्ड कंट्री और वहां पे एक्चुअली बहुत कम एविडेंस ऑफ नॉर्थ कोरिया यू विल फाइंड ऑन द इंटरनेट। फिर अनदर थ्योरिस्ट कॉल्ड मार्गरेट गोइंग 74 में सेड कि जी ग्रेट पावर स्टेटस जो है वो भी हो सकती है वजह इन ट्राइंग टू गेन न्यूक्लियर वेपन्स। अब उसमें ये एग्जांपल की कि जो फिनोमेना ऑफ पास्ट पावरफुल स्टेट्स यानी कि जैसा फ्रांस और यूके जो है उनको बड़ा सिवियर फाइनेंशियल लॉसेस हुए थे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एंड उनकी पावर काफी रिड्यूस हो गई एंड यूएस इमर्ज्ड एज दिस न्यू लीडिंग वर्ल्ड पावर और उसमें एक बड़ा कॉज जो है उनकी न्यूक्लियर वेपनरी का भी था।
और फिर ऑब्वियसली जब नेटो बना एंड यूरोपियन यूनियन की स्टैब्लिशमेंट भी हुई इवेंचुअली, तो बहरहाल उन्होंने ये कहा कि अपने उस स्टेटस को, उसने पास्ट उस स्टेटस को कि जी हम भी कभी ग्रेट पावर्स थे, बोथ फ्रांस एंड यूके वर ग्रेट पावर्स एट वन पॉइंट, तो उस स्टेटस को रिटेन करने के लिए स्टेट्स जो हैं, पुरानी पावरफुल स्टेट्स गेन करना चाहेंगी न्यूक्लियर वेपन्स। तो हमें पता है कि यूके और फ्रांस ने, दे वर क्लोजली फॉलोड 60s तक, बोथ ऑफ दी स्टेट्स वर न्यूक्लियर। एक वजह ये भी थी कि दे थॉट दैट यूएस हैड टू मच कंट्रोल ओवर नेटो, और ये भी उनको इशू था कि जी बहुत सारी स्टेट्स जो हैं वो जस्ट टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम फीलिंग पावरलेस अगेंस्ट यूएस, ये अब बात हम कर रहे हैं यूके की और फ्रांस की, तो वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को उन्होंने इसलिए डेवलप किया ताकि ये ना हो कि यूएस कभी भी गेन्स मोर पावर और फुटिंग देन दे डू, मतलब अपने आप को पावरलेस फील कराने से बचाने के। Okay, so the only really sort of comprehensive treaties in existence जो कि न्यूक्लियर फ्री फ्यूचर की बात कर रही हैं, फिलहाल तो ऑब्वियसली जिनके पास हैं उनके तो वेपन्स वो अपने गिव अप करने को तैयार नहीं है, कोई सी स्टेट भी, और ना वो करेंगी, ना उनको करना चाहिए गिवन द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ। तो सबसे पहले तो है जी ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स के जितने हैं भाई वो तो हो गए हैं, इससे ज्यादा अब ना कोई कंट्रीज वेपनाइज ना करें अपने आप को। और इसके लिए 3 एस्पेक्ट्स है जी, कि सबसे पहले कि स्प्रेड ना हो, विच इज नॉन प्रोलिफरेशन, और स्प्रेड ना हो। दूसरा जी डिसआर्ममेंट, कि जिनके पास है वो अपने वेपन्स को रिड्यूस करें। तीसरा है फाइनली पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, विच इज फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड मेनी अदर पर्पसेस। These elements constitute a grand bargain, यानी कि जब ये ट्रीटी हुई थी और जब इसको मुख्तलिफ ममालिक ने साइन किया था, तो उसके ऊपर ये बात थी कि जो उस जमाने में 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स थी और नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स थी, उनके दरमियान में ये डिसाइड किया गया था कि ठीक है हम भी वेपनाइज नहीं करेंगे पर आप भी इस्तेमाल नहीं करेंगे और आप भी रिड्यूस करेंगे अपने वेपन्स को, और इन रिटर्न न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाने की इकोनॉमिक असिस्टेंस एंड मेनी प्रोजेक्ट्स वर इनिशिएटेड बाय यूएस एंड द अदर P5 कंट्रीज टू रियली हेल्प स्टेट्स जिनका सबदा इसमें कोई बेनिफिट हो सकता था इन परसुइंग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। और जिनके पास है वो डिसआर्ममेंट को परसू करेंगे और जिनके पास नहीं है वो बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, विच इज वाई ईरान इज ऑलवेज अंडर फायर बिकॉज दे कीप इंसिस्टिंग ऑन अ न्यूक्लियर प्रोग्राम, हालांकि वो इसको हैंड ओवर करने को तैयार हैं इन एक्सचेंज फॉर इकोनॉमिक एड। अच्छा, comprehensive nuclear test ban treaty banned all kinds of nuclear explosions everywhere by everyone. ये नेगोशिएशन जो थी जनेवा में अडॉप्ट की थी नेशनल यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज वर सिग्नेटरीज टू दिस एंड 182 countries have signed, 154 have ratified this treaty. This treaty states कि अब कोई न्यूक्लियर टेस्ट या कोई कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर वेपनरीज का टेस्ट अब कंडक्ट नहीं किया जाएगा। However, it becomes kind of pointless because जिनके पास ये कैपेबिलिटी है जो कि एक्चुअली कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट कर सकते हैं, उन कंट्रीज ने इसकी तरफ कोई रेटिफिकेशन का वो नहीं किया। 44 states like India, North Korea, Pakistan have not signed the treaty, while China, Israel, Iran, Egypt and the United States have not ratified it. That means कि उन्होंने साइन तो किया हुआ है पर उसकी रेटिफिकेशन नहीं की। अब इंटरनेशनल लॉ में एक चीज होती है डेक्लेरेशन, कि ट्रीटी को बाइंडिंग करने के लिए यानी कि उनके ऊपर वो एज अ लॉ अप्लाई हो, उसको रेटिफाई करना जरूरी है। सो लाइक आई सेड के इंडिया, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान ने तो साइन भी नहीं की, लेकिन चाइना, इजराइल, ईरान, इजिप्ट और यूनाइटेड स्टेट्स ने साइन की भी है, बट दे हैव नॉट रेटिफाइड इट। दैट मींस दे हैव नॉट एक्सेप्टेड इट एज लॉ, क्योंकि अगर उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो उसकी रेप्रिकॉशंस उनके नेशनल लॉ में भी हो सकती हैं, एंड दे माइट just have to incorporate such a ban into their national law, in which none of them are willing to do. As we know कि US भी टेस्ट कंडक्ट करता रहा है, इंडिया भी करता रहा है, और नॉर्थ कोरिया ने तो भी फेयरली रिसेंटली भी काफी सारे टेस्ट कंडक्ट करवाए थे जब इनके और यूएस के हालात खराब हो गए थे। सो दिस इज द करंट सिचुएशन कि इसके नेक्स्चर्स हैं इस ट्रीटी के, जिसमें मुख्तलिफ कंट्रीज आते हैं, जैसे कि रेड जोन आपको नजर आ ही रही है इस वक्त के, वो नॉन सिग्नेटरी है। अब ट्रीटीज को साइन करने के 2-3 तरीके होते हैं। कई ममालिक जो हैं वो पूरी की पूरी ट्रीटी को साइन भी करते हैं, रेटिफाई भी कर देते हैं, और फिर कई ममालिक ऐसे होते हैं कि उसके कई पोर्शंस पे वो एतराज उठाते हैं कि जी ये चेंज कर दिया जाए या हम इस पोर्शन को हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। सो दैट कैन बी, तो ये जो लिखा हुआ है ना एनेक्स 2 साइंड एंड रेटिफाइड, फिर कई लोगों ने लिखा हुआ है एनेक्स 2 ओनली साइंड, रेटिफाई नहीं किया हुआ,
तो CBTP की इस वक्त जो सिचुएशन है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है, बिकॉज दैट मीन्स के टोटल जो अभी दुनिया में कहीं पे भी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे ये इसकी एप्लीकेशन ऐसा नहीं मौजूद। लाइक टेस्ट कंडक्ट हो रहे हैं और ये न्यूक्लियर टेस्ट होते रहते हैं। पाकिस्तान और इंडिया तो कर ही रहे हैं, बिकॉज लाइक दिस साइड के तो सिग्नेटरी भी नहीं है। China is the only country that has shown some degree of restraint in trying to not test their materials in the last decade or so. मगर US ने भी टेस्ट कंडक्ट किए हैं और बाकी ममालिक ने भी। एनपीटी का ये स्टेटस है इस वक्त, गिव्स द डिटेल्स कि कौन सा कंट्री कहाँ पे है, उन्होंने ट्रीटी कब ज्वाइन की और एक्सप्लोजन्स कब कंडक्ट की। So इसमें remarkably South Sudan is the only African nation that is a non-signatory to the NPT, and UK ने अपना सबसे पहले वेपन टेस्ट किया 52 में, ट्रीटी उन्होंने साइन की 68 में। अच्छा जी, इजराइल जो है जिसके लिए ये कहा जाता है कि इनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो बहुत सोफिस्टिकेटेड है और प्रोबेबली बहुत डेंजरस है, लेकिन इजराइल ना ओपनली ना एक्सेप्ट करता है कि उनके पास है वेपन्स, ना ओपनली उनकी कोई डिटेल्स शेयर करता है, और जनरल उसने दुनिया को जो है एम्बिग्विटी में रखा हुआ है। नॉर्थ कोरिया जो है उन्हें विड्रॉ कर लिया था ट्रीटी से 2003 में, और अपनी पहली डिवाइस उन्होंने टेस्ट की थी 2006 में, जिसके बाद उन पर बहुत क्रिपलिंग इकोनॉमिक सैंक्शंस लग गई थी यूएस के हाथों, और जनरली उनको सिर्फ एड में देता है चाइना। चाइना ने अपना पहला जो डिवाइस था उसको टेस्ट किया था 64 में और 92 के अंदर असीड किया था ट्रीटी को। पाकिस्तान ने अपना डेटोनेट किया था 98 में इन रिस्पॉन्स टू द न्यूक्लियर टेस्ट मेड बाय इंडिया। इंडिया ने अपना पहला टेस्ट कंडक्ट किया था 74 में और उसको पीसफुल डिक्लेयर किया था। हाउएवर दे डिड डू अ वेपन्स टेस्ट इन 98, और कुछ ही हफ्तों बाद पाकिस्तान ने भी अपना वेपन्स टेस्ट कर लिया था। मतलब वहां पे फिर वी वर लेफ्ट विद लिटिल टू नो चॉइस। सो न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग या वेपन यूजेज जो है वो अभी तक एक ही कंट्री ने पर्टिकुलरली किया है, विच इज यूएसए, एंड दैट इज द एग्जांपल ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। उसके हवाले से जो डिटेल्स और डैमेजेस थे उसका मैं आर्टिकल आप लोग से शेयर कर दूंगी। Okay, so now we are going to look at CSA, which is also known as Comprehensive Safeguards Agreement. अब ये जो highlighted portions हैं ये links हैं, ये actual they will take you to the link of the article जहाँ से ये information मैंने ली भी है ताकि आप लोग के लिए आसानी हो जाए। अच्छा जी, अब the IAEA, which is the International Atomic Energy Agency, और जो CSA है, which is the Comprehensive Safeguards Agreement, ये नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स जो सिग्नेटरी है इज रिक्वायर्ड फॉर देम कि जी या नहीं भी है कि वो अंडर द एनपीटी इज एन ऑप्शन फॉर नॉन एनपीटी मेंबर्स, व्हिच इज वही बात कि इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू दिस, हालांकि उन्होंने एनपीटी साइन नहीं किया, मतलब इट इज कंप्लीटली ऑप्शनल। इसका ये होता है कि वो फिर सेफ्टी कंसर्न जो है दुनिया की, बाकी दुनिया की, आपके आर्सेनल को लेके खत्म हो जाती है। Pakistan has made no such arrangement with the International Atomic Energy Agency. However, अगर हम कर लें तो क्योंकि इसमें political influences और बाकी मामलात भी बहुत आ जाते हैं, तो वो ये होता है कि उनके इंस्पेक्टर्स और ग्रुप ऑफ पीपल दे कम एंड दे गिव अ रिपोर्ट कि जी ये इनकी सेफ है, इनका प्रोग्राम, ये सिर्फ सिविलियन उसकी यूजेज है, कोई मिलिट्री इस्तेमाल नहीं है, और जो रिसोर्सेज हैं वो डेंजरसली एक्सप्लॉइट नहीं किए जा रहे। Right now, 175 states with comprehensive safeguards agreement as of June 2020. Each year safeguards जो लगे हैं कि जी न्यूक्लियर मटेरियल कैसे इस्तेमाल हो रहा है, उसकी सेफ्टी पे तो कोई खतरा नहीं है, और उसके यूजेज को पीसफुल तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, वो सारी चीजें, ये जो है IAEA makes a report of this every year. और जो मेंबर स्टेट्स हैं वो इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती हैं, और इनकी एक टीम जो है वो इन्वेस्टिगेशन और रिपोर्ट या फैक्ट फाइंडिंग के लिए इन कंट्रीज में जाती भी है। अब इंडिया हैज अ वेरी गुड सेटिंग विद दिस पर्टिकुलर एजेंसी, और इनको काफी बेनिफिट्स अभी मिले हैं रिसेंटली बाय प्रूविंग देमसेल्व्स एज वर्दी ऑफ दिस पर्टिकुलर एजेंसी, और दैट वो अपने मटेरियल्स को सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसी चीज की एक और है विच इज नोन एज द एडिशनल प्रोटोकॉल। जैसे कि पहले मैंने जिक्र किया था स्टेट सर्वाइवल थ्योरी का, यहां तक तो बातें सारी सही थी। एडिशनल प्रोटोकॉल जो है इस पर्टिकुलर
अग्रीमेंट की जो मैंने अभी आपको पीछे दिखाया, विच इज द कॉम्प्रिहेंसिव सेफगार्ड्स अग्रीमेंट, ये एक सॉर्ट ऑफ परफॉर्मेंस अग्रीमेंट इसको कह लें बिटवीन अ स्टेट एंड दिस एजेंसी। और उसके ये 4-5 फैक्टर्स हैं, और उसमें डिटेल्स क्या है कि जी स्टेट जो इस्तेमाल कर रही है वो अपनी न्यूक्लियर वेस्ट को सही तरीके से डिस्पोज कर रही है, और जो उनके रिसोर्सेज हैं या जो न्यूक्लियर मटेरियल उनके पास है वो एनर्जी पर्पसेस के लिए ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है और मिलिट्री एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रही। फिर सेफ्टी ऑफ दोज मटेरियल भी जो है इंश्योर की गई। सो मतलब जो जनरल कंक्लूजन थी इस प्रोटोकॉल की वो ये है कि दैट ऑल न्यूक्लियर मटेरियल इन अ स्टेट रिमेन्स इन पीसफुल एक्टिविटीज। अब ये जो एडिशनल प्रोटोकॉल है इसका सिग्नेटरी है इंडिया, पाकिस्तान वंस अगेन नहीं है, लेकिन इसकी सिग्नेटरी होने से और ये जो इंस्पेक्शंस कराने से इंडिया को जो सॉर्ट ऑफ एक उनकी सॉफ्ट पावर में इजाफा इस तरह से हुआ कि देन द अदर स्टेट्स आल्सो एग्री कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो सेफ है और सिविलियन एनर्जी एक्सप्लॉयटेशन के लिए इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है बनिस्बत एज अ वेपन। अब ये जो लेटेस्ट इनके थे लास्ट नोन जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की जो सेफ गार्ड्स उन्होंने बताए हैं कि क्या क्या उनकी रिपोर्ट्स हुई हैं और क्या क्या किस तरह की जो अग्रीमेंट्स हैं उनकी इस वक्त मौजूद हैं, उनका बजट क्या है और किस तरह उनका स्टाफिंग क्या है और कौन कौन सी स्टेट्स जो हैं उनका भी सेफ्टी मटेरियल जो है वो मतलब इनका जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो सेफली इस्तेमाल हो रहा है। सो दिस इज अ जनरल रिपोर्ट फ्रॉम 2020। आई यूज दिस पर्टिकुलर इन्फोग्राफिक ताकि आप लोगों को इसमें से जल्दी जल्दी इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि उन्होंने कितने एनवायरमेंटल सैंपल्स कलेक्ट किए, डिस्पोजल साइट्स देखी और मैनेजमेंट देख रहे हैं। इस एजेंसी का अगर आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर स्टैंप हो कि जी आप सेफ हैं, यू आर डूइंग अ मच बेटर जॉब और आपकी वेरिफिकेशंस अच्छी हुई भी हैं, आपकी डिस्पोजल ऑफ मटेरियल जो न्यूक्लियर वेस्ट की डिस्पोजल है वो सही तरीके से हो रही है और किसी एक डेंजरस इवेंट के होने का खतरा नहीं है और ना ही आपकी सिक्योरिटी ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम को कोई खतरा है। So this is a good endorsement and it helps economically also कि आपकी कंट्री की फिर इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट रेटिंग बढ़ जाती है। Now coming to the actual topic at hand, which is nuclear South Asia. अब इसमें क्योंकि सबसे बड़ी बात समझने की ये है कि this region is considered one of the most dangerous and volatile regions in terms of an actual nuclear war. Back in 2019 and then 2018 there was real fear कि पाकिस्तान इंडिया की जो कशीदगी चल रही थी ड्यूरिंग द पीक ऑफ इंडियन इलेक्शन उनके यहाँ होने वाला था उस जमाने में, तो ये हमेशा कहा जाता है कि इंडिया उसी टाइम हुई पाकिस्तान के साथ एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है कि लोग जो है बीजेपी को वोट डालते हैं फिर। सो इट इज यूजुअली अ पॉलिटिकल स्टंट इन व्हेन इट कम्स टू द सिविलियन लीडरशिप ऑफ इंडिया। बहरहाल वॉट एवर द कॉज में बी एंड द होल अभिनंदन फियास्को दैट हैपेंड कि उनका पायलट हमने पकड़ लिया, उन्होंने किसी एक फेक रैंडम खाली प्लॉट के ऊपर बॉम्ब मारा और फिर कहा कि जी हमने इनका कैंप डिस्ट्रॉय कर दिया मिलिटेंट्स का। अब ना नो सच एक्टिविटी हैपेंड, लॉट्स ऑफ पीपल एक्चुअली वेंट, इंटरनेशनल मीडिया को उधर जाने भी दिया गया और दिखाया भी गया कि यहाँ पे कोई कैंप नहीं था, इन्होंने कहीं पे कुछ नहीं किया। So what this showed was कि just to get political points उनकी civilian leadership ने they fronted this whole idea कि शायद कोई actually covert operation पाकिस्तान के खिलाफ किया गया, जबकि ऐसा नहीं हुआ। फिर उनका अपना पायलट पकड़ा गया और उनके 2 फाइटर जेट्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए। So this led to Pakistan की defense system became fairly popular immediately after this, and obviously the use of high sort of training by the pilots also showed that हमारी military capability is good enough to deal with such a large adversary. अब इसके अंदर फिर मसला अलबत्ता क्या आता है कि डिस्पाइट दिस होल ये थोड़ा सा एज अ पाकिस्तानी तो बड़ा जोश और जज्बा आपके दिल में पैदा होता है, आपको बड़ी खुशी होती है कि वो यस वी बीट इंडिया, बट अगर उस थोड़े से वो कहते हैं ना सॉर्ट ऑफ अपने लव फॉर योर कंट्री से जरा बियॉन्ड जाके आप देखें तो आप देखते हैं कि इस एडवेंचरिज्म का नुकसान क्या होता है। नुकसान ये होता है कि रीजन जो है वो अनस्टेबल डिक्लेयर होता है, पैसा, इन्वेस्टमेंट, बिजनेसेस देन डोंट मूव इनटू दिस रीजन ऑफ द वर्ल्ड।
पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी खदशात हैं, इसके अंदर रिसेंटली सबसे बड़ी मिसाल आप लोगों ने देखा हो कि जी जो एक अगर तंग करने पे आपको आए इंडिया, तो वो फिर कहाँ कहाँ से अटैक करता है। मसलन के भी जो न्यूजीलैंड की टीम ने अपना दौरा मनसूख कर दिया, या जो कि आपकी इंग्लिश टीम है उसने भी अपना दौरा मनसूख कर दिया। बट हाउ कैन इंडिया पुल दिस? राइट नाउ इंडिया इज द लीडिंग फाइनेंसर ऑफ क्रिकेट इन द वर्ल्ड। उनका इतना बड़ा शेयर है ड्यू टू आईपीएल, इतने बेपनाह मिलियंस ऑफ डॉलर्स अब इस वेंचर और मार्केट में आ चुके हैं कि इंडिया इज इनफैक्ट नॉट ओनली मैनेजिंग बट कंट्रोलिंग द क्रिकेटिंग वर्ल्ड। इसके हवाले से एक छोटा सा 20 मिनट्स का एक एपिसोड है फ्रॉम दिस वेरी दिस शो कॉल्ड पेट्रियट एक्ट, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जरूर देखिएगा। इट विल शो यू कि हाउ इंडिया इज रियली कंट्रोलिंग और पुलिंग द स्ट्रिंग्स ऑफ क्रिकेट एंड स्पोर्टिंग वर्ल्ड के अंदर। एंड फिर देयर आर मल्टीपल फ्रंट्स ऑफ अटैक। जब आपके साथ अनस्टेबिलिटी रहती है, आप हमेशा फियर में रहते हैं। मिलिट्री एक्शन इज जस्ट वन टाइप ऑफ एक्शन। पॉलिटिकल एक्शन हो सकता है आपके खिलाफ, इंफॉर्मेशन कैंपेन रन हो सकता है। दिस इज वंस अगेन फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर इज मोर टू डू विद information, media tactics and economics than it is to do with military capability. So वहां पे जाके तो हम कन्वेंशनल स्टाइल पे हमने उनको मात दी, लेकिन इसके नुकसानात बहुत हैं कि पाकिस्तान को उस इंफॉर्मेशन कैंपेन से निकालना। अब ये जो भी करंट आपकी गवर्नमेंट है, इट इज एक्चुअली टेकिंग वेरी लेजिटिमेट स्टेप्स इन काउंटरिंग द नैरेटिव, यानी कि वो बातचीत कर रहे हैं, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लोगों को बताते हैं कि जी यूं हुआ, इस तरह हुआ, इंटरनेशनल एजेंसीज में आर्टिकल्स दिखवाना। तो ये अभी पाकिस्तान को अपनी जो इंफॉर्मेशन की जो गेम है ना, उसको अप करने की बहुत जरूरत है इस वक्त। फिर इस रीजन का एक और जो इशू है कि बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल बेस्ड न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम्स यहाँ पे हैं कॉमन, और क्योंकि कंट्रीज आपस में एक दूसरे के बॉर्डर्स शेयर करते हैं, तो एक दूसरे के ऊपर फायर करने का नुकसान ये भी है कि अपने रीजन को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे आप, इवन इफ यू डिसाइड टू फायर एट अ बॉर्डरिंग स्टेट फॉर एग्जाम्पल। फिर पाकिस्तान के न्यूक्लियर मटेरियल्स की सेफ्टी को लेके यूएस ने, यूके ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने, मेनी ऑफ द कंट्रीज ओवर द इयर्स हैव सेड कि जी इतनी ज्यादा आपकी जो दहशतगर्दी है उसकी वजह ये भी हो सकती है कि अगर इनके हाथ आपका मटेरियल लग गया तो फिर क्या होगा। सो फार पाकिस्तान हैज वेरी एप्टली डिफेंडेड इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। हाउएवर ये एक जनरल मिसट्रस्ट है पाकिस्तान के लिए दुनिया में कि जी वो अपनी उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। इफ वी वर टू रीच विद परफॉर्मेंस एग्रीमेंट विद द इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी, तो फिर शायद ये हमारे फेवर में चीज आ जाए। लेकिन वंस अगेन वो भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड एजेंसी है, तो वहां पे फिर स्टेक होल्डर्स आप पे नाजायज प्रेशर डाल सकते हैं। अब कंपटीशन मौजूद है। अब यहाँ पे जो तीन मेजर स्टेट्स हैं, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान, जिनके न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं, अब उनके हवाले से जो उनकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है, मॉडर्न एडवांसमेंट्स क्या है। चाइना के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, और नेवल और सबमरीन जो कहते हैं डिलीवरी सिस्टम्स हैं उनके बहुत एडवांस हैं और इंडिया से बहुत आगे हैं। सो these are just some of the examples of and numbers that define के क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं और क्या क्या न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज हैं। इनके नंबर्स को रटना कोई जरूरी नहीं है, you should have just a basic idea about this। इसके हवाले से क्वेश्चंस क्या आएंगे, वो मे बी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वक्त यही है कि फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के हवाले से परहैप्स कोई क्वेश्चन आ सकता है, इंफॉर्मेशन कैसे क्योंकि न्यूक्लियर वॉर का अभी जो टॉपिक है वो किसी के दिमाग में नहीं है। लेट अस बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट दैट कि अभी इस वक्त इमीडिएट कंसर्न वही वाली बात के पेंडेमिक ने ये सारे जो लो सिमर पे डले हुए इश्यूज थे पुराने, इन सब को पीछे छोड़ दिया हुआ है। और इस वक्त कॉन्वर्सेशन ही और हो रही है कि जी इकोनॉमिक वॉरफेयर का दौर चल रहा है, तो न्यूक्लियर वेपन रजीम का टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बहरहाल एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन जितनी है वो मैंने आपको बता दी है। ये वंस अगेन इंडिया की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज क्या है, उनका परफॉर्मेंस एग्रीमेंट है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ, वो सेफगार्ड्स हैं, उन्होंने प्रोटोकॉल भी साइन किया हुआ है, वो $4.9 बिलियन स्पेंड करते हैं, वेपन सिस्टम्स मौजूद हैं, मिसाइल रेंज वो टेस्ट करते रहते हैं, और वो अपनी एक एडवांस्ड सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स को डेवलप कर रहे हैं, जहाँ पे वो 3500 किलोमीटर विद इन जो है रेंज जो है वो अचीव कर ले। लेकिन वंस अगेन दीज आर ऑल पॉइंटलेस बिकॉज वही वाली बात है कि बिकॉज वी आर बॉर्डर कंट्रीज, तो डिस्टेंस इज नॉट रियली एन इशू। अगर आपने एक्चुअली जिस दिन डिसाइड किया टू फायर ऑन ईच अदर, पाकिस्तान इज साइज वाइज लेस देन अ प्रोविंस ऑफ इंडिया, और अगर पाकिस्तान ने डिसाइड किया टू फायर ऑन देम तो इट वुड रियली मेक नो डिफरेंस, वी आर बॉर्डरिंग कंट्रीज।
फिर अब पाकिस्तान की क्या है, पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी और जो हमारी जो रेंज है, और हमने जो मिसाइल्स अभी रिसेंटली डेवलप की हैं, जिसमें लेटेस्ट जो हताफ एंड राद शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं, जो कि हमने खुसूसन इंडिया के कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन एक है चीज, उसकी आगे मैं आपको डिटेल्स बता दूंगी, लेकिन अब वो डिबंक हो चुका हुआ है। कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के ऊपर कोई अमल दरामद होने के चांसेस नहीं है, नॉट रियली। सो पाकिस्तान की कैपेबिलिटी कई मामलों में, और एक दो रिपोर्ट्स मौजूद हैं, उसके हिसाब से पाकिस्तान इज मोर न्यूक्लियरली अवेयर एंड प्रिपेयर कंपेयर टू इंडिया। फिर पॉलिटिकल टूल है पाकिस्तान के लिए, लेकिन ये इसकी जो कैपेसिटी है और इसकी जो डिटेल्स हैं, वो मिलिट्री रिजीम ने काफी हद तक अपने करीब रखी हुई है। सिविलियन लीडरशिप का इसमें रोल बहुत कम है, विच इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम इंडिया, विच इज के इंडिया में जो न्यूक्लियर का सारा प्रोग्राम है, उसको स्पीयर हेड अभी भी सिविलियंस ही करते हैं, मिलिट्री का उसमें इतना फोर फ्रंट में जाके से नहीं है। पाकिस्तान में मिलिट्री इज होल एंड सोल when it comes to your nuclear program, और काफी closely held to the chest cards है सिक्योरिटी के हवाले से। एंड हमने जो है अपना ट्रिपल किया है नंबर ऑफ वॉर हेड्स, इंडिया हैज ओनली इंक्रीज इट फॉर लाइक 50% और मोर, और वही बात के the chances of an actual nuclear war are zero between the two countries। अब डॉक्ट्रिन्स क्या है दोनों की, इंडिया ने नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पे साइन किया हुआ है कि जी हम सिर्फ डिफेंस कैपेसिटी की बेस पे यूज करेंगे, दैट मींस कि अगर हम पे किसी ने हमला किया तो हम जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। पाकिस्तान ने ये कहा है कि जी मिलिट्री स्ट्रेटेजी दैट प्रमोट्स डेटरेंस, दैट मींस कि हम मैसिव रिटेलिएशन कर सकते हैं एक नॉर्मल एग्रेसिव अटैक के ऊपर भी। दिस इज टू प्रिवेंट इंडिया फ्रॉम ट्राइंग टू अटैक अस विद कन्वेंशनल फोर्स। दैट मीन्स के अगर नॉर्मल कन्वेंशन अटैक भी हम पे किया इंडिया ने, तो हमने जो स्पेशल छोटे वॉरहेड्स उनके लिए डेवलप किए हैं न्यूक्लियर, जो हम उन पे हमला कर सकते हैं, जो कि दैट विल कॉज मैसिव रिटेलिएशन, पर उसका लॉस इतना सिवियर नहीं होगा कि इंडिया को यूज करने पड़ जाए अपने न्यूक्लियर वेपन्स। सो देयर इज दिस होल कंट्रोल सिचुएशन। फिर जो response to an external nuclear attack on its territory or armed forces anywhere would be massive and designed to inflict unacceptable damage. Unacceptable damage वही है कि जी to assure that destruction is mutual. पाकिस्तान की फर्स्ट स्ट्राइक पॉलिसी मैंने आप लोगों को शुरू में बता दिया था। रीजनल स्ट्रेटेजिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया था ताकि इंडिया को काउंटर कर सके। फिर मिनिमल क्रेडिबल डेटरेंस, दैट मींस कि इतने ही वेपन्स हम बनाएंगे हमेशा कि इंडिया को हम पे अटैक करने से रोका जा सके। जबकि इंडिया जो है वो चाइनीज न्यूक्लियर एक्सपेंशन को एक सिक्योरिटी थ्रेट समझता है, हम इंडियन एक्सपेंशन को एक सिक्योरिटी थ्रेट समझते हैं। अब इसमें बड़ी मशहूर इनकी जो है एक डॉक्ट्रिन है, जिसको जो इनका बहुत मशहूर इनका डिफेंस मिनिस्टर था दुवल, आई थिंक राइट नाउ, ह्यूज प्रोपोनेंट ऑफ दिस वाज कॉल्ड द कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन। दैट मींस कि अगर इंडिया अपनी कन्वेंशनल छोटे स्केल पे फौजियों से एक अटैक को लॉन्च करे पाकिस्तान पे, तो उनका रिस्पॉन्स स्लो होगा और वो जल्दी से डैमेज करके बाहर निकल आएंगे, तो दैट वोंट गिव पाकिस्तान इनफ इंसेंटिव टू अटैक देम, बिकॉज उन्होंने उस लेवल पे जाके इतना बड़ा हमला नहीं किया होगा। कोल्ड स्टार्ट से मुराद यही है कि वो छोटा सा ऑपरेशन कंडक्ट करेंगे अंदर जाके बॉर्डर में, और फिर थोड़ा सा और अंदर चले जाएंगे, फिर ऑपरेशन करके वापस आ जाएंगे। जिस तरह से जो उन्होंने 2-4 बेकार फिल्में भी बनाई हैं इंडियंस इसके ऊपर, विच इज एक उड़ी है कि, और फिर यही कि जी हम पाकिस्तान में घुस के अंदर जो है ना हमने 2-3 इस तरह के छोटे छोटे ऑपरेशन किए। दिस इज ऑल कंजेक्चर और ऑप्टिक्स है कि जी दिखाने के लिए कि हमारा बहुत लेवल है और हम बहुत ज्यादा जो है इस तरह से चीजें उनके ऊपर कर सकते हैं और अंदर घुस के हम हमला करते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा। अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। द वन टाइम दे एक्चुअली डिड एंटर पाकिस्तानी एयर स्पेस, पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया था इंस्टेंटेनियसली और उनके कैंप पे हमला किया, और फिर जब उनके फाइटर जेट्स ने परसू किया पाकिस्तानी को, तो वी डाउन 2 ऑफ देयर प्लेन्स। तो ये डॉक्ट्रिन एक तरह से डेड है। बहुत साल तक तो इंडिया माना भी नहीं था कि इस तरह की कोई डॉक्ट्रिन एग्जिस्ट करती है। पाकिस्तान का रिस्पॉन्स है न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर फाइटिंग, विच इज होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। योर आर्मी इज इनक्रेडिबली प्रिपेयर टू डील विद इंडिया सेंट्रिक थ्रेट्स।
ये तो इसमें कोई डिनायल नहीं है कि जिस तरह का हमारा रिस्पॉन्स आया था रिसेंटली, और जो आया, आपकी सिविल और मिलिट्री लीडरशिप ने बहुत अच्छे तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल किया, एंड वी डेफिनेटली इमर्ज विक्टोरियस फ्रॉम दैट कॉन्फ्लिक्ट। और इनकी जो गवर्नमेंट है बीजेपी की, इसको बहुत नुकसान हुआ था इस एडवेंचरिज्म का। सो दिस इज नोन एज अ न्यूक्लियर एस्केलेशन लैडर। दैट मीन्स के ये दिस वाज पब्लिश्ड इन द राइट विंग न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया कॉल्ड द हिंदू। उसके अंदर उन्होंने ये बातचीत लिखी हुई थी कि मे बी इंडिया को रिकंसिडर करना चाहिए, कि हमें फर्स्ट यूज कर लेनी चाहिए, कि हम उन पे हमला कर दें। फिर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करता है अगर पाकिस्तान उसके इंडिया के ऊपर, तो इंडिया फुल स्केल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर ले, और न्यूक्लियर बोगी जो है उनके ऊपर आए, फिर उन पे हमला करे, फिर वो टैक्टिकल वेपन करें। सो होल साइकिल ऑफ दिस, कि फाइनली जो न्यूक्लियर एक्सचेंज होगा ना, वो लास्ट स्टेज है कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन की, कि अगर स्विफ्ट डिप्लॉयमेंट की जा सके वेस्टर्न बॉर्डर पे, और एक जल्दी से फुल ब्लोन वॉर को अवॉइड कर लिया जाए, पर जो उनको लग रहा है कि जो क्रेडिबल थ्रेट है वो हम न्यूट्रलाइज कर दें उतनी देर में। तो पाकिस्तान ने पिछले 10-15 साल जो है अपना रिस्पांस टाइम इतना बेहतरीन कर लिया लैंड और एयर फोर्सेस का, कि कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन एक्चुअली इफेक्टिव नहीं हो सकता। इसकी एक झलकी हमने देखी थी, ये जो सारा अभिनंदन वाला फियास्को हुआ था इंडिया के लिए, उसमें हमने ये देखा था कि दे ट्राइड देयर बेस्ट टू क्रिएट, और उन्होंने विदाउट वार्निंग इनिशिएट किया, तो उसका इंस्टेंटेनियस रिस्पांस पाकिस्तान आर्मी ने दिया, बल्कि अनाउंस भी कर दिया कि जी हम रिस्पांस देंगे, और ऐसा देंगे कि ये लोग याद रखेंगे। सो दिस इज हाउ जो है ना, मुख्तलिफ कंट्रीज ने अपनी डॉक्ट्रिन्स और अपनी मिलिट्री कैपेसिटी को वो देखते रहे हैं, डेवलप करते रहे। अब जैसे इन्होंने लिखा हुआ है कि पाकिस्तान जो वो एरियल डॉग फाइट कर सकता है हमारे साथ, और इंडिया जो है वो प्रिसीजन एयर स्ट्राइक्स करे बालाकोट के अंदर, ये सब प्लान जो उन्होंने दिया हुआ इतना अपने तौर से मजेदार किस्म का, ये वो एक्चुअली अमल में ला चुके हैं। बालाकोट में सो कॉल्ड एयर स्ट्राइक हुई, और सब कन्वेंशनल वॉरफेयर की नियत में पाकिस्तान पलट के, दिस वाज नॉट इनफ ऑफ अ स्टेप बाय इंडिया फॉर पाकिस्तान टू यूज न्यूक्लियर वॉरफेयर। तो उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान ने क्या किया, उन्होंने जाकर उनके कैंप्स पे हमला किया उनके कंट्री के अंदर, और फिर उनके 2 फाइटर जेट डिस्ट्रॉय कर दी। सो दैट मीन्स कि पाकिस्तान इज मोर देन able to deal with them despite without using nuclear weapons. So the cold start doctrine in that context is dead now. मतलब वो रिलाई कर रहे थे कि पाकिस्तान फोर्सेस अपनी डिप्लॉयमेंट में टाइम लेंगी, तो वो टाइम को यूज करना था उन्होंने, कि जब तक वो डिप्लॉय करेंगे हम वहां से निकल जाए। दैट वाज द एम ऑफ कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन। सो अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उसने हैज एन अप्रूव्ड एन एग्रीमेंट विद इंडिया, अंडर विद द एजेंसी गेन्ड एक्सेस टू इंडियाज सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर्स। वो जाके उनकी ऑब्जर्वेंस करते हैं, और उन्होंने उनकी बड़ी फेवरेबल रिपोर्टिंग की, जिसके बाद उनको एक वेवर मिल गया कि जी वो सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और फ्यूल को एक्सेस कर सकते हैं और खरीदो फरोख्त कर सकते हैं विद अदर कंट्रीज। And then US agreed that the world's largest democracy, which is India, is a responsible nuclear power. So this really helped them economically, unka image improve hua, and many other aspects. Benefits can't really be counted. Now there is this whole key point called the think dance. EU based hai. India जो है वो ये कहता है कि जी थिंक टैंक सेज कि इंडिया इज आल्सो एक्सपैंडिंग इट्स एबिलिटी, कि वाइल उन्होंने जो अपनी एक्सपेक्शन करवाई वो सिविलियन रिसोर्सेज की थी, लेकिन जो ये मटेरियल लेंगे बाकी ममालिक से, ये उससे अपनी मिलिट्री एक्सपेंशन भी करेंगे और न्यूक्लियर वेपन्स को और पावरफुल बनाएंगे। अब फिर सिक्योरिटी की क्या पोजीशन होगी इन साउथ एशिया? क्लियरली इंडिया इज डूइंग मच बेटर देन पाकिस्तान व्हेन इट कम्स टू एक न्यूक्लियर परसेप्शन इन द रीजन. So a report that examined the security suggestions and generally के उनकी security measures जो हैं, this report is called Preventing Nuclear Terrorism, Continuous Improvement और Dangerous Decline. ये हार्वर्ड कैनेडी स्कूल ने एक रिपोर्ट निकाली थी, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि जी इंडिया का जो कैपेसिटी है वो इस वक्त पाकिस्तान से पीछे है और कमजोर है, और ये भी जज करना मुश्किल है कि इंडिया की न्यूक्लियर सिक्योरिटी इस वक्त is able to face the threats that it would be dealing with in the future. अब जैसे अफगान क्राइसिस के बाद एक बहुत बड़ा मसला जो मुद्दा जो पड़ गया है इंडिया को, ये है कि तालिबान से उनकी बिल्कुल कोई इंटरेक्शन या बनती नहीं है. सो जो पुरानी गवर्नमेंट थी उनके साथ इंडियंस का बहुत गठजोड़ था. पाकिस्तान रिपीटेडली सेड कि अफगानिस्तान को यूज किया जा रहा है
to launch spy missions, espionage, and targeted terrorist attacks within Pakistan by India. अब cards flip हो गए हैं और अब इंडिया को मुसीबत पड़ सकती है from अफगानिस्तान. अब पिछले 20 सालों में पाकिस्तान ने अपनी न्यूक्लियर सिक्योरिटी को और स्ट्रेंथन किया है और ये कहा जाता है कि जी तकरीबन 25,000 ट्रूप्स जो हैं वो इस वक्त गार्डिंग द न्यूक्लियर स्टॉक्स, फैसिलिटीज एंड पार्क्स, जो आपकी न्यूक्लियर एनर्जी पार्क्स हैं, बाय द एसपीडी व्हिच इज द स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन, जो कि डील करती है आपकी न्यूक्लियर सिक्योरिटी को इन पाकिस्तान. So that is all for the nuclear dynamics of the world, and inshallah the next lecture would be the Afghan crisis.